स्वाद आज करेंगे। RSVP एंड McGuffin Pictures presents सोन चिड़िया, और पहले स्टेज पर मैं बुलाना चाहूंगा मनोज बाजपेयी जी को। इनके लिए तालियां हो जाए। Can I get a mic, please? Good afternoon, sir. How are you? गया क्या माइक स्टार्ट से ही? There we are. Always looking super fit, sir. पहले तो आपके नई इस पद्धति पर congratulations, पद्म श्री sir. Thank you so much. Thank you. Big round of applause. I know you are a very humble man and know कि आप ये सारी चीजें आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी हैं. In fact, between the entire cast, there's so many awards that you all have won. But it must make you feel happy also जब ऐसा एक honor मिल जाता है आपको. I'm sure you must be feeling very happy also knowing that that title is there. No, definitely. Any kind of honor is always welcome. You know, because all the actors and they work very hard. You know, they put themselves on the line. One second. Where there are a lot of questions, there are a lot of apprehensions, there are a lot of confusion, conflict that they go through. But eventually, if they are honored at the end of the day, it's always very humbling. It's very overwhelming for anybody. It's just that over the years you learn how to control it, how to control your emotion. That's all. But the happiness is always there. Social media पर we are always very happy. So I get very happy, when something like this can happen and we can applaud someone like you. But social media can be very unhappy too, at times. So I don't think happiness is is left on social media any longer. Yeah. So now I think many of us are actually thinking of going back to Telegram days. ये character, when I saw this, the look of this film, the trailer, everyone looks बहुत मेहनत वाली film लग रही है. 1975 की emergency, to be transported back in that time, to ये language, ये look, it really looks like, apart from Abhishek also, everybody has really had to put in the hours for this role. Right. Is that would I be completely correct in saying that, as much hard work put in by everybody, or was it Abhishek having to put in 30 hours extra a day? See, it always starts with the writer and director. A story takes a shape when the writer is sitting on the table, or he's contemplating, and then from there the journey starts of the film. And in this case, Abhishek himself was one of the writers, and Abhishek is not somebody who just sits there or monitors the writing. He actually gets into the thick of it. I came to know that he actually goes into the terrain and he learns the language, he interacts with the people, he becomes one of the villagers. So for any kind of a problem that an actor is going through or a unit problem is going through, they know one thing, that Abhishek knows everything. He has all the solution for everything because he's already gone through it. So that's quite remarkable for a writer-director. I have been a fan of him. I was always a big fan. When I saw his film, Ishqiya, that time when I was watching it in theater, I thought, अरे यार, ये भी film चली गई यहाँ से यार. तो, so I was always a big admirer of him as a writer-director. Thank God I got a small chance in this film, but I made the most of it. Believe me. That's fantastic to hear, Abhishek. High praise for you as well. Before we show your character promo, I want to know, if you want to work with a director like Abhishek, would Manoj Bajpeyi WhatsApp him and say, I loved your film, I want to work with you? I have done it all my life. Really? With the directors. This is a ritual that I follow every morning. And I'm very serious about it. That whichever film that I like, whichever director's work that I like, I always make it sure that I speak to them and let them know that I'm willing to work with them. It's always better because our industry is not Hollywood, which is spread out. Here, if people are so close-knit, they should know that, you are willing to work with them as an actor, as an experienced actor. And then the, ice breaks from there. Yeah, breaks totally. But in his case, I was hoping that one day Abhishek will offer me something, and the film landed up in my hand. And तो मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने कहा यार सुशांत वाला रोल मुझे क्यों नहीं दिया यार. चलिए जो रोल सर आपको दिया है, let's have a look at that character show. We made a little promo out of it. So if you could just join me on the side and we'll show this entire character of Before Manoj that, sir. I must congratulate
Ronnie and his team for Uri and the humongous success of it. It, are you happy with the way it's turned out? अब तो आपने obviously तो you've तो lived the film. अब जो final product आ चुका है, one last bit from you. क्या कहना चाहेंगे अपने character के बारे में? Just निकलते, you know, to the audience, what would you like to say? The name of the character is Man Singh, and it is coming in the 25th year of my existence in this film industry. When I started with Man Singh in Bandit Queen. Okay, so that was a character which was based on real life, but this is completely a fictitious character. He's the reason for the story, and how should I say? I mean, you'll see a first dacoit in. I've never heard of any dacoit who is actually so spiritual. Man Singh in this film is actually everything but cruel. You know, he's very spiritual. He is somebody who's wise and you know, giving gyan to everybody, to Sushant's character, and also he's the reason for this story. So I think he triggers off the amazing story that, you know, folds in the film. मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं आप लोगों को, बहुत ही कमाल की फिल्म है. मैं अपने दोस्तों को हमेशा कहता हूँ कि यार ये this is one of the films that I'm so proud of in my filmography. It's a classic. Son Chiriya is not a film, it's beyond a film. Thank you, Abhishek. Thank you so much, sir. Thank you so much. Please do take a seat, sir. Yeah, thank you. All right, ladies and gentlemen, अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा एक ऐसे जनाब को जो जब भी मैं उनको देखता हूं मुझे लगता है कि सर आई बेटर रीड अप माय डिक्शनरी. मेरे सारे शब्दकोश जो है बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए. वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मर्स भारतीय पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हर चीज ये कर चुके, हर एक अवार्ड जीत चुके हैं. आशुतोष राणा जी के लिए तालियां हो जाए. स्टेज पर मैं उनको बुलाना चाहूंगा. सर कैसे हैं? आनंद है. दो चीजें आपके साथ ऑलवेज रहेंगी सर, ये नेगेटिव कैरेक्टर्स जो आपकी आंखों के साथ रहते हैं जी, और दूसरी सर आपकी लैंग्वेज जी. क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव रोल्स को भी बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं, तो मैं उनमें से एक हूँ. सर लेकिन भाषा को लेकर लोगों ने ऑलवेज थोड़ा सा डरे हैं आपसे, थोड़ा इंटिमिडेट हो जाते हैं कि क्या आशुतोष जी से बात हम कर पाएंगे कि नहीं. नहीं, ये मुझे लगता है कि ये सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी अंग्रेजी हमने सुन ली शुरुआत में. मैं घबरा रहा था बैठे बैठे कि कहीं अंग्रेजी में ना बोलना पड़ जाए, नहीं तो पत्ते खुल जाएंगे. लेकिन हिंदी हमारे सपनों की भाषा है, हिंदी हमारे अपनों की भाषा है, हिंदी हमारे देश की भाषा है और हिंदी हमारे व्यवसाय की भाषा है. तो हिंदी हमारी आवश्यकता भी है, आदत भी है, मजबूरी भी है, संस्कृति भी है. तो फिर इसमें डरना क्या? सर दूसरे पर्सन को डर लग जाता है सर, आपसे नहीं डरे. आपके सामने जो खड़ा रहता है वो डर सकता है सर. हाँ, अगर अब जिस भाषा में हम सपने देखते हैं अगर उसी भाषा में डरने लगे तो फिर मुझे लगता है कि हम अपने ही सपनों से डर रहे हैं. ये रोल जो है सर एक अलग किस्म का रोल लग रहा है. हर कोई एक्साइटेड है इसको देखने के लिए. थोड़ी देर में हम ट्रेलर भी दिखाएंगे. जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभिषेक की प्लानिंग और प्रिपरेशन परफेक्ट रहती है जी. तो थोड़ा इसके बारे में बताएं बिफोर वी सी द प्रोमो. देखिए, अभिषेक चौबे को अगर हम आजकल इनिशियल्स का दौर चलता है तो ए फॉर अभिषेक एंड सी फॉर चौबे, तो एसी. तो एसी अगर इनको कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये उन व्यक्तियों में से हैं कि जैसी एयर वैसी कंडीशन, इसलिए इनको एसी कहा जाता है. तो अभिषेक चौबे अपने आप में पूरे तैयार होते हैं. एक्टर्स को कुछ काम नहीं करना पड़ता है. एक्टर्स को अगर जो इनकी तैयारी है अगर एज इट इज उसको एग्जीक्यूट कर दें, मजदूर के जैसे अपनी कलाकारी ना दिखाएं, मिस्त्री ना बने, मजदूर बनकर अगर कर दें तो आप देखेंगे कि बहुत शानदार इमारत खड़ी हो जाती है. तो मैंने बिल्कुल एक मजदूर के जैसे अभिषेक को फॉलो किया कि वो जैसा चाहते थे वैसा उनको देखता था, सुनता था और उसके बाद उसको जैसा का तैसा उतार के रख देता था. प्रशंसा हमें मिलेगी. सुपर, हाई प्रेज वंस अगेन. बिफोर वी शो प्रोमो, कंट्रोल फ्रीक है क्या? अगर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. ये सबसे बड़े अभिषेक को आप लोकतांत्रिक तानाशाह मान सकते हैं. हाँ, कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो जिनकी फेस वैल्यू जो है वो बड़ी लोकतांत्रिक है कि डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, लेकिन है डिक्टेटर अंदर ही अंदर. तो आदमी को ये लगता है कि नहीं, आपको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन एक समय के बाद आपको ये महसूस होता है कि आप बंधे हुए हैं जनाब. चलो बढ़िया सर. व्हाई डोंट वी जस्ट हैव अ लुक एट द प्रोमो. आशुतोष जी का कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो जाए.
वाह यार, कमाल है। जितना बता सकते हैं अपने कैरेक्टर के बारे में सर, एक आध लाइन अगर आप सुना दें। मुझे लगता है कि बताने की जिम्मेदारी अभिषेक की है, और जैसा कि आपने देख ही लिया, ये ज़रूर कहूँगा कि एक एक्टर के बाद मुझे मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसको दुश्मन, संघर्ष और अब सोच रही है जैसी फिल्मों में और इस किस्म के गुज्जर के जैसे कैरेक्टर्स करने के मौके मिले हैं, जो अपने आप में कल्ट होते हैं, क्योंकि एक्टर कल्ट नहीं होता, उसके कैरेक्टर्स कल्ट होते हैं। अगर वो आपके हिस्से में आ जाते हैं तो एक्टर्स कल्ट अपने आप हो जाते हैं। तो थैंक यू अभिषेक कि आपने एक कल्ट कैरेक्टर मुझे एक लंबे समय के बाद दिया, और रोनी साहब आपने उसके ऊपर विश्वास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। आई जस्ट टेक द माइक, थैंक यू। अब एक और जनाब को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। मैं तो बचपन से इनका बड़ा फैन रहा हूं, जब ये दूसरे मीडियम्स पर भी होते थे, और जब भी वो स्टेज पर आते हैं, जब भी वो टीवी पर आते हैं, जब भी वो बड़े पर्दे पर आते हैं, आई हैव टू से दिस जेंटलमैन इज अ ग्रेट एक्टर। रणवीर शोरे का मैं स्टेज पर स्वागत करना चाहूंगा। एक नए अवतार में, मैंने कभी भी इतने फॉर्मल अवतार में रणवीर सर को कभी देखा नहीं है। भाड़े के कपड़े हैं भाई। बट सो गुड टू सी यू रणवीर, मैं बहुत खुश हूं। यू नो, आई थिंक आप कमाल के तो एक्टर हैं ही, बीच में जब मन करता है आप दिख जाते हैं, और खुशी के साथ कह सकता हूं कि सब आपको यहां पे देख पा रहे हैं। सो जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म कैसा लग रहा है? बहुत अरसे के बाद मुझे भी एक ऐसा रोल मिला है विच आई हैव टू से इट्स अ फिल्म विच आई ऑलवेज बी प्राउड ऑफ। सो थैंक यू अभिषेक फॉर गिविंग मी दिस पार्ट। इट्स आपके लिए लाइफ लाइन है, लीज ऑफ लाइफ है। थैंक यू रॉनी फॉर मेकिंग सच फिल्म्स। बस यही है, बहुत मज़ा आया। और जैसे मेरे से पहले जो दो दिग्गज महाशय यहाँ आ चुके हैं, जो कह चुके हैं कि ये एक मामूली फिल्म नहीं है। आई थिंक ये फिल्म के रिलीज़ के पहले कहना मुझे थोड़ा सुपरस्टिशियस सा लगता है कि ना कहूँ, बट फाइनली जब आप लोग फिल्म देखेंगे आपको भी ये एहसास होगा कि दिस फिल्म इज़ समथिंग विच विल गो डाउन इन हिस्ट्री। ऐसी फिल्म को देख करके लगता है कि बहुत मुश्किल फिल्म थी फिजिकली शूट करने के लिए। सो जब एक एक्टर ऐसी फिल्म के लिए यस करते हैं, आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ कि बॉस नेक्स्ट 2-3-4 महीने जो होंगे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, एंड वी स्टिल हैव टू परफॉर्म विद ऑल दी यू नो इक्वेशंस एज फार एज एनवायरनमेंट और ये सारी चीजें हैं, तो ऐसा माइंडसेट था? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि एक वहम है लोगों के मन में कि फिल्म मेकिंग एक आसान चीज़ होती है। आई थिंक हर फिल्म के चैलेंजेस होते हैं। ये मेरा ख्याल दूसरी या तीसरी फिल्म है जो मैंने चंबल में शूट की है। बस इस फिल्म में इतना फ़र्क था कि हमने शुरुआत की सर्दी में और ख़त्म की गर्मियों में, और चंबल में बहुत ज़बरदस्त गर्मी भी पड़ती है और ठंड भी। तो जो उसके लिए तो हर एक एक्टर मैं मानता हूँ प्रिपेयर्ड होता है हार्डशिप्स के लिए, बट यही है कि एंड रिजल्ट, उस मेहनत का फल क्या मिलता है आपको, दैट बिकम्स पैरामाउंट। और जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आदमी कुछ नहीं सोचता, कोई भी मेहनत, कोई भी ऐसी सैक्रिफाइस बड़ी नहीं लगती। मैंने सुना है, जो मेरे को एक खूबसूरत सा व्हाट्सएप मिला था, जो कपड़े एक ही पूरे कपड़े में पूरी फिल्म शूट हुई है, हर किसी का जो एक है, फर्स्ट डे और लास्ट डे में वो कभी धुलने नहीं गया। नहीं, बट मुझे तो उसकी आदत है। मैं तो वैसे भी रियल लाइफ में सेम ही कपड़े मोस्टली पहनता हूँ, और धो लेता हूँ शायद बीच में, बट मेरे कपड़े सेम ही होते। मैं जैसे जब कपड़े खरीदने भी जाता हूँ तो एक ही तरह की 6 टी-शर्ट्स, मतलब अलग अलग, पैक ऑफ 5। हाँ, पैक ऑफ 5 ऐसे ही, बिकॉज उसमें मैं टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करता। तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया था ये कि एक ही कॉस्ट्यूम है, तो ठीक है, कंटिन्यूटी याद रखने की, कोई अलग अलग चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस न्यू एंड इम्प्रूव्ड अवतार ऑफ योर्स इन दिस सूट। भाड़े के कपड़े। आपके कैरेक्टर का प्रोमो जरूर देख लेते हैं प्लीज। बहुत ही ग्रिम कैरेक्टर लग रहा है आपका वकील सिंह का। जी हाँ, वकील सिंह का मैं ब्रीफली अगर कुछ बता सकूं ऑडियंस को, तो वो ये चेले चपाटे हैं मान सिंह के, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं मनोज बाजपेयी जी का चेला चपाटा हूँ। और वो उनके कह लीजिए राइट हैंड मैन हैं गैंग में। और फिल्म में जो मेरे कैरेक्टर का आके आप कह सकते हैं कि यही है कि वो राइट हैंड मैन है कि लेफ्ट हैंड मैन है, ये आप फिल्म देख के आपको पता लगेगा। थैंक यू सो मच रणवीर, थैंक यू। और लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ये पहली बार बड़े पर्दे पर आई थी, मैंने सोचा था वाह व्हाट अ टैलेंट, व्हाट अ परफॉर्मर। उसके बाद उनके अवतार बदलते चले गए फास्टर देन। लोग ऑलवेज मुझे बोलते थे कि जो हीरो और हीरोइंस के अवतार होते हैं ना,
बॉलीवुड में कोई चेंज नहीं करता है, बाकी सारे कैरेक्टर्स इर्द गिर्द चेंज होते रहते हैं, बट आई एम सो प्राउड ऑफ द परफॉर्मर दैट भूमि इज. हर बार वो अपने आप को यू नो शी स्ट्रेचेस हिमसेल्फ टू द लिमिट. तो सिर्फ इसी के लिए द नो फियर दैट शी हैज, इसी के लिए आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ भूमि पेडनेकर. और उनके लिए तालियां हो जाए ये स्टेज पर. अभी मैं बुलाना चाहूंगा उनको. Hello everyone. Hi Sanal. What is true, हर बार you have a no fear policy. और बॉलीवुड में आके एक्टर्स यू नो कई बार थोड़ा हो सकते हैं डर के कि क्या मेरा अवतार जो वो वाला पसंद आया. आपके तो हर अवतार को लोग पसंद कर रहे हैं, बट थोड़ा सा फेयर कभी रहता है. नहीं यार, आई थिंक मैं किसी अवतार के पीछे नहीं भाग रही हूँ. ऑनेस्टली मैं कहानी के पीछे भागती हूँ. और अगर आपकी कहानी स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास एक डायरेक्टर हो, डायरेक्टर और राइटर आपकी फिल्म का एंकर होते हैं, तो आप उन्हीं के ऊपर अपना पूरा फेट डालते हो. एंड एवरी टाइम टच वुड टिल नाउ इट हैज़ वर्कड आउट. एंड अगर मैं सोन चिड़िया के बारे में बात करूँ, ये एक ऐसी कहानी थी जब अभिषेक सर ने मुझे पहली बार बोला कि मैं एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई वेंट वीक इन माई नीज, क्योंकि ये मेरे बकेट लिस्ट पे थे हमेशा. और मैंने कहा यार अभी तक, तब तक मेरी कोई फिल्में आई नहीं थी दम लगा के हैशा के अलावा. फिर मैं गई, मैंने नरेशन सुनी और उन्होंने कहा कि एक डकॉइट ड्रामा है. मैंने कहा मैं क्या करूँगी इसमें. बट जब कहानी सुनी मुझे लगा कि यार ये फिल्म छोड़ नहीं सकते हैं. मुझे बहुत ही एक डीप सेंस ऑफ लॉस हो रहा था सोच के भी कि इज़ देयर एन ऑप्शन, शुड आई नॉट डू इट. लेकिन जैसे ही कहानी ख़त्म हुई मैंने कहा कुछ हो जाए, जो हो ये तो करनी है. एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई लव द वे द फिल्म हैज़ टर्न्ड आउट. It's so different. It's very enriching for me as an actor to be a part of this film. As a viewer only, I'm getting so excited looking at that. But आपका वो वाला अवतार और ये वाला अवतार तो जमीन आसमान का फर्क है. So आपके लिए how is it? एक तो लैंग्वेज इतनी मुश्किल है. और मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपने कुछ एक आध शब्द एड़ा टेढ़ा बोल दिया तो अभिषेक सर ने तो शॉट रोक दिया होगा. तो लैंग्वेज तो चंबल के बारे में हम सबने सुना तो है, लेकिन जानते बहुत कम इसके बारे में. तो इसके कैरेक्टर को जीने के लिए काफ़ी मेहनत लगी. बहुत मेहनत की थी. जब इनिशियल मीटिंग्स ही हुई थी तभी अभिषेक सर ने कह दिया था कि देखो मेहनत तो हर एक्टर करता है अपनी फिल्म के लिए, लेकिन इस फिल्म के लिए ना तुम्हें इमोशनली, फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी हम ये एक्सपीरियंस साथ में अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे. एंड उन्होंने इतनी सख्त ट्रेनिंग हमें दी थी. हमने करीब फिल्म शुरू होने के 2 महीने पहले हमारा काम शुरू कर लिया था. और बुंदेलखंडी जो बोली है शुरुआत में हमें लगा कि ठीक है, मतलब समझ तो ऑफकोर्स आती है पर बोल पाएंगे या नहीं. बट अल्टीमेटली जब तक हम सेट पहुँचे हम सब उसी में बात कर रहे थे, एडीज भी उसी में बात कर रहे थे, अभिषेक सर भी लगे हुए ये करेगो, ये हो ना हो. मैंने कहा बट ऐसी माहौल होना चाहिए, then you don't feel like you're shooting a film only. Exactly. But there was a lot of hard work and rightly so. ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें अगर आपने एक certain amount of preparation ना की हो, and considering I'm very new as an actor, मेरी journey काफ़ी short रही है, not like these amazing people sitting over here. तो hard work बहुत था और difficulties भी थी. लेकिन जब हम शूट करते थे तब कुछ ना वेदर, ना जो माहौल, एनवायरनमेंट कुछ टफ नहीं लगता था, क्योंकि हमने अपने आप को इतना अच्छा प्रेप किया था. इनफैक्ट आई फील द एनवायरनमेंट जस्ट एडेड ऑन टू आवर कैरेक्टर्स. एंड हमने इतने मज़े किए शूट करते हुए. मतलब आप समझो हम 20 मिनट अंदर एक लोकेशन में चल के जा रहे हैं और एक एनिमल कार्कस यहाँ पड़ा हुआ है, आगे जा रहे हैं कहीं कोई कट लग रहा है, लेकिन कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की. द कंडीशंस वर हार्श, बट द लव एंड द ब्रदरहुड एंड द सिस्टरहुड दैट वी हैड ऑन दिस फिल्म वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग. ये एक अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की वजह से ऑलवेज होता है. बिल्कुल. और कास्ट एकदम परफेक्ट है. लेट्स हैव अ लुक एट द कैरेक्टर प्लीज. वीड लव टू सी अ प्रोमो. सुपर अग्रेशन. तो ये बिल्कुल आपके विपरीत है कि रियल है? जी नहीं, मतलब मैं भी हूँ थोड़ी अग्रेसिव इंसान, लेकिन ये लड़की बहुत अलग है यार. आफ्टर प्लेइंग दिस कैरेक्टर ना मैं एक और अच्छी इंसान बन गई हूँ. ये फिल्म करने रियली ये फिल्म करने के बाद आई बिकम अ बेटर पर्सन, क्योंकि इस लड़की में इतनी स्ट्रेंथ और इतनी करेज है. शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन इन अ मैन्स वर्ल्ड. वो जहाँ को बिलोंग करती है वहाँ उसको कभी ये नहीं लगा था कि उसके पास पावर हो सकती है या उसके पास कोई ओपिनियन हो सकता है. एंड सर ने अपनी लिखाई से, सुदीप एंड सर ने इतनी एम्पावरिंग लड़की, इतना एम्पावरिंग किरदार खड़ा किया कि मुझे बहुत मज़ा आया इसे प्ले करते. मैंने अपनी सारी भड़ास, मतलब मारते हुए लोगों को सारी भड़ास निकाल दी है. किसी को रियल में लगा कि नहीं? से पूछो जो बाकी कास्ट मेंबर्स हैं. थैंक यू सो मच भूमि. थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस ऑन स्टेज. And the gentleman I'm going to call on next knows that I've always been a fan of his. हर एक जो किरदार ये उठाता है, मुझे लगता है कि जो मैंने लाइनें भूमि के लिए बोली,
is very, very apt for Sushant as well. Itne varied roles and on the big success of Kedarnath also. Congratulations, buddy. I'd like to call you on stage. And I say it every time. I'm always in awe of actors who push themselves. हर बार तुम कोशिश करते हो कि मैं कुछ नया परोसूं हमारे ऑडियंसेस के लिए. और बिल्कुल भी यार, जब तुम पहले आए थे तो हमारी चॉकलेट बॉय, जॉ लाइन, ये सारी चीजें हैं. इसके बावजूद तुम ऐसे कैरेक्टर्स उठा लेते हो, विच इज फैंटास्टिक. एंड फॉर अस एज ऑडियंसेस हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं. जी, मुझे ये पहले समझ में आया था कि जितना आप अपने काम से प्यार करते हो और जितना अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डालते हो कि आपको पूरी तरीके से नहीं पता कि कैसे करना है, उतना आप सीखते हो. लेकिन इस बार मैं बोलना चाहूँगा कि इस फिल्म में मैं अभी भी बहुत डरा हुआ हूँ कि मैं वो स्टेज शेयर कर रहा हूँ जिनका मैं फ़ैन रहा हूँ कब से, मुझे भी पता नहीं सर, सॉरी. बट आप हमेशा बोलते हैं कि कब से, मतलब बट बहुत ग्रेटफुल हूँ. और कमाल की बात यह है कि जिस अभिषेक सर जैसे भूमि ने बोला, मेरे भी बकेट लिस्ट में थे, और अचानक से एक दिन फ़ोन आया और वो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ, और मुझे लगा था फिल्मी हो, फिर मुझे लगा फिल्मी होगा. फिर उन्होंने एक पेज पढ़ा और मैंने सर को रोका और मैंने सर को कहा कि आप वेस्ट मत करिए टाइम, मैं प्लीज़ करना चाहता हूँ, मैं अभी आपको वैसे ही ढूंढ रहा था. एंड देन आई रेड द स्क्रिप्ट, और उस रात को मैंने फ़ोन किया सर को और मैंने कहा कि आप सही बोल रहे थे ना कि मैं हूँ, क्योंकि ये बहुत ही वैसा कैरेक्टर है जो काबिल है, उस बात को लेके श्योर है, लेकिन उसके अपने क्वेश्चंस हैं और सर्च में है किसी बात को लेके, जो मनोज सर और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके थ्रू वो सीखता है. तो एग्जैक्टली सेम माहौल था. मनोज सर, आशुतोष सर, रणवीर सर, भूमि, इन सब के बीच में मैं जब एक्टिंग कर रहा था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आज ये कर सकता हूँ. मुझे तो पूरा विश्वास था भाई. और हम लोग जब थिएटर्स में जाते हैं, a round of applause for Sushant. I love your choices. Even if I'll be the only person clapping for you, every time I met you, I've always felt that it really takes guts to want to go on not a beaten path. अब एक अलग रास्ता अपना बनाते हो, तो मुझे लगता है कि this is a given. जिस तरह ट्रेलर भी लगा था, खूबसूरत है. आइए आपका खूबसूरत जो कैरेक्टर, इसका प्रोमो देख लो. डायलॉग्स तो रहेंगे. लखना कैसे है, कैसा लगा ये कैरेक्टर, और लैंग्वेज आपके लिए इजी थी कि नहीं? कह लीजिए बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत कुछ सीखना था, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि आज जितना मैं डरा हुआ हूँ, ग्रेटफुल हूँ, उतना ही मैं खुश भी हूँ. आज मैं जब घर जाऊँगा तो रूम में मैं बिल्कुल बंद करके नार्सिसिस्ट की तरह मैं बोलूँगा कि मैं ऐसे फिल्म का हिस्सा हो. और थैंक यू सो मच अभिषेक सर, रॉनी सर. बीच में किसी लॉजिस्टिक्स की वजह से डेट्स, मेरी पुरानी फिल्में थोड़ी पुश हो गई थी डेट को लेके, तो काफ़ी डेट्स के लिए आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई. आप सबको मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि फिर भी आप लोगों ने इस तरीके से सपोर्ट किया. एंड नाउ वी हैव अ ट्रेलर इन विच आई एम देयर विद देम, सो आई एम really grateful. Thank you. Before you sit down, you have this amazing connection, and I say this sometimes, the connection works with Ronnie sir. आप लोग का ये जो चल रहा है at the box office, congratulations on that. But what's the working relationship like? यहाँ पे थोड़ा बताएं. सिर्फ फिल्म, जैसे फिल्म की बात रहने दीजिए, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं, जिसके लिए बहुत अलग चीज़ें सीखना होता है. मैं जब रॉनी सर को देखता हूं तो बहुत ही कंडेंस्ड वे में, इकोनॉमिकल वे में, 2 लाइनों में, उनकी किताब में या कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ लेके जाता हूं. और इसलिए सर हम दोनों बहुत कम मिल पाते हैं, लेकिन मैं प्रोसेस कर रहा होता हूँ आप कैसे काम करते हो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑलवेज एन इंस्पिरेशन. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. थैंक यू. Thank you so much, Sushant. Do take a seat. Thank you so much. और अब the two gentlemen that have put this together, the two gentlemen, एक ने तो सब कुछ कर दिया और आपकी तारीफें सारे कास्ट ने ऑलरेडी सुना दी, और एक मैं कहता हूँ कि एक ब्रेव डायरेक्टर, ब्रेव प्रोड्यूसर्स, दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द इंडस्ट्री विल बी, हाउ द ऑडियंसेस विल बी. फिल्म मेकर बनना इतना मुश्किल होता है. एक फ्राइडे पर कोई भी आके कोई भी ट्वीट मार देता है, कोई भी रिव्यू मार देता है, और पूरे साल 2-3 साल की मेहनत सब चेंज हो जाती है. सो दैट्स व्हाई टू यू जेंटलमैन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. अभिषेक चौबे, रॉनी स्क्रूवाला जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा. Congratulations, Ronnie sir, first of all. Brilliant run, big round of applause, Kedarnath and Uri. You're the man with the golden touch, sir. अभी तक तो चल रही है, तो चलने दो. I don't want to jinx it actually. Before we speak to you also, sir, just the faith and the trust जो पूरी इंडस्ट्री को है अभिषेक चौबे में, मतलब हम सब फैन हैं फिल्मों के इनके, लेकिन जो इतना समय जाता है इसको बनाने में, your relationship with him.
See, I think you used the word brave, and I'm just going to start with English because I love producing Hindi movies, but I like talking in English. But I think, you know, from Ishqiya onwards, I've always really liked what he's doing. And we've kept talking, and opportunities have not come our way. Then I moved out and didn't do movies for about 6 years. So I'm really proud that if I'm coming back and doing something, that I've had the opportunity to do that with Abhishek. And the second thing I would say is, genuinely and absolutely, you can't find a more hardworking, precise, concise director. And third is, I'm a man of few words, and he's a man of few words. So we get along perfectly. Precise, concise, hardworking. As a producer, ये तीन शब्द इतने खूबसूरत है फॉर अ डायरेक्टर. आपने सब कुछ लिख दिया, हर चीज़ परफेक्ट है, आप लगते कुछ और है, अंदर से कुछ और है, ये सब सुन लिया सर हमने. आपकी जो कास्टिंग रही है परफेक्ट रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो आई एम सो हैप्पी टू बी शेयरिंग द स्टेज विद यू. मैं भी आपका बड़ा फैन रहा हूँ फिल्मों का. ये बहुत मुश्किल फिल्म लगी है, ऐसा दिखता है. आपने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि मेरी फिल्में रियलिस्टिक दिखती हैं क्योंकि वो दुनिया बनाई जाती है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज इनटू मेकिंग दैट दुनिया. तो इसके बारे में और सोनचिड़िया के बारे में कुछ बताएं. जी सोनचिड़िया का जो आइडिया भी था बनाने का, वो रॉनी सर से ही आया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके ऑफिस में जाकर के मिला. उन्होंने कहा मुझे इस टाइप की फिल्म बनानी है, मुझे कुछ एक्शन एडवेंचर वेस्टर्न बनाना है. तो उन्होंने मुझे ये आइडिया बीज मेरे दिमाग में उन्होंने ही डाला. और फिर हमने सोचना शुरू किया इस फिल्म के बारे में कि अगर एक्शन एडवेंचर वेस्टर्न करना है आज के माहौल में, इस दुनिया में, तो फिर कैसी फिल्म होनी चाहिए. और मुझे इस फिल्म को डेवलप करने में एक्चुअली बहुत वक्त लगा, क्योंकि सुदीप और मैं पहले कुछ और लिख रहे थे और वो कहानी भी सुनाई थी और उनको लगा था हाँ अच्छी कहानी, इसी पे काम करो. लेकिन 2 महीने 3 महीने काम करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस उस कहानी पे टूटा और मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दूंगा. और मैं गया इनसे मिलने और इनको कहा कि वो नहीं वर्क कर रही है, मैं कुछ और पे काम करना चाहता हूँ. बट ही वाज लाइक यही कहने के लिए आए थे तुम, जो करना है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. सो द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू नो दैट ही हैड इन मी इज व्हाट you know allowed me to make the film that eventually this has turned out to be. You know, before we move to the trailer, आपकी फिल्म बड़ी मुश्किल लगती है बनाने के लिए भी also. You know, it looks like you don't have a single day off when you're making the film, thinking about the film, writing the film also. कई बार हम लोग कैंडी फ्लॉस फिल्में देखते हैं जो लोगों को भी पसंद आती है और वो अलग जोन में चली जाती है. But have you always been like this dark kind of cinema that you like that or make? अब ऐसे हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है. मैं एकदम डार्क टाइप का आदमी नहीं हूँ. हाँ ऐसा नहीं है. और ये फिल्म आई मीन यू नो डार्क एक्चुअली इतनी है नहीं, यू नो, जितना आपको लग रहा है. ये एक्चुअली एक फिल्म इट्स अबाउट होप. इट्स एन एक्शन फिल्म. हाँ संजीदा बातें हैं और कुछ हम कहने की कोशिश कर रहे हैं. हर फिल्म मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो कहना ही चाहिए. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मतलब एक सब बहुत दुखी कर देंगे. यू नो, इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू, फॉर एवरीबॉडी, एंड दैट्स व्हाट वी इंटेंड टू डू. या और फिल्म मेकिंग बड़ी मुश्किल होती है और डायरेक्टर का फर्ज होता है कि उसके साथ जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा बेवकूफ़ बना करके लेके जाए और फिर take them on that ride. ऐसी कहा से के साथ में I want perfect. to add to that because I think we should not be using the word dark. In Indian cinema, I think because most of our genres are with so much fun, that when we see sometimes real films, we start using the word dark. So I think this is a real film, is what I would say. A real film which we're going to watch right now. Gentlemen, if you could join me over here, we'll just play the trailer for you all. And I know you're going to like this. There, ladies and gentlemen, can I have some chairs on stage, please? Can I have the chairs on stage? And then I'd like to invite the cast, but let me just get some chairs. Think we need a few. Actually, could I invite the entire cast, Ronnie sir and Abhishek sir is on stage? They might be taking 1 or 2 of those chairs while you walk up. Yeah. I just did the mathematics, or we might fall short. Please. Yeah. No, please. That's not required. Done. Perfect. And मैंने तो बहुत सवाल कर लिए. Now I will open the floor out for any questions. Can everybody have mics, please? Yeah. Okay, we open the floor out for questioning. Hello. My question is for Ronnie, sir. 1 second. From where? This side.
Yes. Here, on the So left. you're- So with the rip-roaring success of Uri and Kedarnath, how hopeful are you to hit a hat trick at the box office with this film? Light flicker mat karo, please. Full lights. Yes. Yeah, I think you got to see the trailer. Each movie has its own karma. I think each movie has its own destiny in every sense of the word. Each movie is special. You can't compare it with anything else. And for us and for everybody here, this movie is special, not just because of the incredible hard work we've put, but it's a cult movie in many ways. It's a genre-breaking movie. And I think if audiences will slowly grow to like the movie, that's what I think we're very, very confident about. Hello, this is Sakshi from Bollywood Now. Here, I'll come. That's right. On the left. Yeah. So my question is to Ronnie sir. Uri's 23rd and 24th day collection has beaten Bahubali's collection also. Ronnie sir, on your left. Yeah, I know. I Here. just want to tell her that we're at a Son Chidiya. Yeah, I'm like, so has that helped you to take more risks as a producer? And what do you expect out of Son Chiriya? Because it's not like it's a commercial film, but it's not like a candy floss film. So what do you expect from the film, and what has that experience taught you as a producer? No, I don't think Son Chidiya is a risk at all. And I wish I was on the 24th day of Uri to greenlight a movie like Son Chidiya. Then I would have had a very different luxury. It doesn't work that way in life. So, no, I think we're on a very, very, very good place. As I said, each movie has got its own positioning. And what you think the audiences may or may not have an issue with, they sometimes really love it. Thank you. Great then. One sec, hang on. नहीं 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 एक ही माइक ट्रैवल कर रहा है या नहीं नहीं ये माइक से यहाँ They're in पर awe of the trailer, they're in awe of the cast, so let them. So just now they're asking all the. okay yes yeah go ahead Hi Manoj sir, Ravi from ABP News. Hi, Ravi. मनोज सर 1994 में जो बैंडेड क्वीन आई थी, आपने मान सिंह का किरदार निभाया था. फिल्म की चर्चा दुनिया भर में हुई थी. वही किरदार, उसी नाम का किरदार वापस निभाने के लिए जब आपसे अप्रोच किया गया, तो क्या आपके मन में किसी तरह का एप्रीहेंशन था कि उस जोन में मैं फिर से क्यों जाऊं, या आप एकदम से तैयार? उस बात को 25 साल हो गए थे. मुझे लगता नहीं कि जो जनरेशन आज की है उसको बैंडेड क्वीन इतना पता भी होगा. इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू गो बैक टू द सेम वर्ल्ड एंड रीविजिट इट विद न्यू डायरेक्टर, बिकॉज द न्यू डायरेक्टर के पास में एक अलग अप्रोच होता है, एक अलग ढंग से कहानी कहने का तरीका होता है. एंड तब तक दुनिया बदल चुकी होती है. जो डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड. तो आप जो है इवॉल्व करते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ evolving with the new genre that is being offered to you. हाय सुशांत रवि. सुशांत, क्या आपने बैंडेड क्वीन और पान सिंह तोमर जो चंबल में ही सेट थी, क्या अपने किरदार के रेफरेंस के लिए ये दोनों फिल्में देखी, क्योंकि ये दोनों फिल्में कल्ट मानी जाती हैं? जी कल्ट हैं भी, मुझे ऐसा लगता है. और मैंने बहुत पहले से ये फिल्म देखता आ रहा हूँ, बार बार देखता हूँ. और लिस्ट है जिसमें कि टॉप में ये दोनों फिल्में. तो ऐसा इस फिल्म को लेके कोई रेफरेंस नहीं था कि क्या करना है, क्योंकि उसके लिए स्क्रिप्ट और अभिषेक सर, और जब मैं शूट कर रहा था तो सारे स्टार कास्ट से जो भी आप सामने देख रहे हैं उन सबके वो उन लोगों ने टेक केयर कर लिया था. लेट्स जस्ट से दैट फॉर मी जस्ट टू एग्जीक्यूट व्हाट दे वर सेइंग, अपना दिमाग नहीं लगाने के लिए. तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो उस फिल्म से मैं सीखूं, लेकिन हर कुछ उस फिल्म से ही सीखा है, तो आप कह सकते हैं. रॉनी सर, वन क्वेश्चन टू यू. Go ahead. सर 25 साल पहले जब बैंडेड क्वीन आई थी उसमें बहुत सारे कस वर्ड थे, बहुत सारी गालियाँ थी. हम देख सकते हैं इस ट्रेलर में भी कुछ गालियों का इस्तेमाल किया गया है. उस फिल्म को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था सेंसर से लड़ने के लिए. तो क्या इसमें इस तरह की गालियाँ दिखेंगी फिल्मों में, या किस तरह से सेंसर से आपको जूझना पड़ा, कुछ बता सकते हैं? This film is censored. तो वो ऑब्स्टिकल पार कर चुके हैं. I think that let's not look for a controversy that No, there is not none. controversy. I'm just asking कि क्या किसी तरह की दिक्कत आई आपको? No, actually not. Abhishek was there at this screening along with our colleagues, and actually, they came out saying they loved the movie. They had 3 suggestions, and that was it. It was very much because I think the movie is set in a particular manner. Maybe Abhishek wants to throw more light on, but there was really absolutely no issues. Completely.
कोई परेशानी नहीं हुई और कोई दिक्कत नहीं आई। फिल्म सेंसर हो चुकी है, एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं And पड़ी। compared to भगवान your की दुआ last से। movie, this was a honeymoon. एकदम this was like a very easy ride, thankfully. Yeah. रॉनी सर, इससे अलग एक सवाल, सारे जहां से अच्छा की बहुत चर्चा हो रही है। पहले आमिर करने वाले थे, शाहरुख करने वाले थे, अब वो भी नहीं कर रहे हैं ये फिल्म को। व्हाट वुड यू लाइक टू से, जिस तरह से कास्टिंग चेंज हो रही है और नाम आ रहा है कि विकी कौशल अब ये फिल्म करने वाले हैं जो आप बना रहे हैं? At the moment, we're not ready to say anything. Anybody else? Yeah. हेलो हेलो, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल सुशांत सर से और भूमि जी से है। देखा जाए तो मनोज सर पहले भी इस टाइप की फिल्में कर चुके हैं और आप दोनों इस क्लब में, आप एक तरह से देखा जाए तो डेब्यू कर रहे हैं इस टाइप की फिल्मों में, तो पर्सनल लेवल पे मनोज सर से आप दोनों को कुछ लेसन लेने का मौका मिला सेट पे? मैं जब तक गया था भूमि जा चुकी थी, तो लेसन लेने के लिए थे नहीं वो। बहुत कुछ। और मैं अभी भी बहुत डरा हुआ हूँ, तो अगर मेरे से मैं ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ आप सब से, और मनोज सर मैं आपका बहुत 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 बड़ा फ़ैन Thank बहुत you. दिनों से रहा हूँ। अच्छा, ये जो डरने की बात कर रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मुझसे मटन बनवा के और मछली बनवा के खाते रहते हैं ये। मैं उस बात पे आ रहा था। तो जब मैं उनके साथ एक्टिंग कर रहा था, ऐसा एक्टर को नहीं सोचना चाहिए बैकग्राउंड लेके, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और मेरे जहन में इनकी इतना कुछ सीखा है कि मैं घबरा जाता था। कमाल की बात यह है कि अभिषेक सर ने बहुत कमाल से मेरा कैरेक्टर भी वैसे ही लिखा है कि मैं घबराया हुआ मनोज सर को सुनता हूँ। तो मैं उसमें निकल गया, लेकिन बहुत कुछ बिना बताए हुए सिखाने की जो कला होती है वो उनमें है। और इसके साथ साथ वो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी उनकी छुट्टी होती थी, इतने प्यार से पूरे सेट के लिए, रणवीर सर ने भी एक बार बनाया था वैसे और कमाल का बनाया था, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से सबको खिलाया कि सब में बहुत मतलब सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीख रहे थे हम लोग हर चीज़ से। ओके, सुशांत और यहाँ पर इसी सवाल से आगे कंटिन्यू सवाल है कि जब भी इस तरह की फिल्में डकैतों बेस्ड फिल्में बनी हैं, वो किरदार जब फिल्म रिलीज़ होती है वो किरदार अमर हो जाते हैं, मतलब वो इतने पान सिंह तोमर हो या कोई भी किरदार हो, वो लोगों के जहन में बैठ जाते हैं। तो डायरेक्टर के विजन के अलावा आपका कितना इनपुट रहता है इस किरदार को अपने तरीके से और बेहतर करने के लिए? ये सवाल रणवीर जी के लिए भी है। आप दोनों, आई मीन रणवीर शौर्य कपड़े मैंने अच्छे पहन लिए तो मेरा नाम रणवीर सिंह मत कर दो। आई एम सो सॉरी, मुंह से निकल गया, रणवीर जी के लिए भी है। You come after a while, तो it's okay. ये लोग रोज वहां से मिल रहे हैं। देखिए, हर रोल के लिए प्रेपरेशन ज़रूरी होती है और आई थिंक एक्टर जो लाता है वो बेसिकली एक हार्ड वर्क की कमिटमेंट लाता है और बेसिक इंटेलिजेंस लाता है। बाकी उसका जो पालन पोषण नरिशमेंट जो होती है वो डायरेक्टर ही करता है हर फिल्म में। सो इस फिल्म में मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि अभिषेक चौबे जैसे मुझे निर्देशक मिले, who I have to say is one of the brightest filmmakers we have at the moment। और जब उन्होंने मुझे ये रोल दिया, so it was like a, मतलब मेरे लिए this film has been a dream run। I mean Ronnie and his team, अंकुर and everyone, उन्होंने इतनी harsh conditions में हमारा इतना अच्छा ख्याल रखा है कि कभी हमको वो मेहनत या करते हुए ये नहीं लगा कि कि हम तकलीफ में हैं। तो आप टू आंसर योर क्वेश्चन, हार्ड वर्क तो हमेशा रेडी होता है अगर अच्छा रोल हो, बट वही है कि एंड रिजल्ट क्या होता है। और इस फिल्म में आई एम लकी कि अभिषेक चौबे हैड समथिंग ग्रेट गोइंग। सुशांत, आप भी इसका जवाब देना चाहेंगे? जी, एक कोट मैंने हाल में पढ़ा था जो बहुत अच्छे से बताता है कि काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैड। उसमें लिखा हुआ था कि इफ़ यू वर्क अ लॉट यू डोंट वर्क हार्ड एंड यू डोंट वर्क स्मार्ट, इन द सेंस के इतना मज़ा आता है इन लोगों के साथ काम करने में कि मैं इतना एक्साइटेड रहता हूँ कि समय का पता ही नहीं चलता। तो शायद बाहर से देखने पे ऐसा आप कह सकते हैं कि अरे बड़ी मेहनत करी होगी क्योंकि इतने इतने घंटे लग रहे थे, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और आज के दिन ही मैं इतनी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को आज सक्सेसफुल मानता हूँ कि मैं उस फिल्म में हूँ जिसमें ये सब हैं। और ये मेरे लिए, मतलब मैं इन सबको थैंक यू बोलता हूँ और अपने भगवान को और आप सबको जो ये बात अभी पहुँचाएंगे लोगों तक। I already consider my successful having worked with these guys. So thank you so much. हम सब भी मिलकर आपको सुशांत थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि ये तीसरी बार आपने हमको कहा है, तो हम थैंक यू वेरी मच। बनता है तो बोलना पड़ेगा ना। Anybody else? आपके हाथ में ही माइक है अभी तक। आपसे भी एक सवाल था। आप हमेशा, आशुतोष सर आपसे
यहाँ पे सर सीधा सीधा यहाँ एकदम पे straight. जी 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 आप हमेशा अपने किरदारों में कई वैरायटीज लाते हैं। हम आपको पॉजिटिव किरदारों में भी देखते हैं, नेगेटिव किरदारों में भी देखते हैं, और आपके किरदार हमेशा कमाल के रहते हैं। जब इस तरह की फिल्में आती हैं जो हमारे ज़मीन से जुड़ी हुई होती है, ग्रामीण से जुड़ी हुई होती है, तो कैसा अनुभव रहता है ऐसी फिल्मों से जुड़ने का? बहुत अद्भुत, और ख़ास करके सोन चिड़िया इसलिए भी बहुत आनंददायक यात्रा रही क्योंकि ये मेरी अपनी मातृभाषा बुंदेलखंडी में है। तो जब आपकी मातृभाषा आपके व्यवसाय की भाषा में आया है तो बड़ा सुख मिलता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस भाषा को मैं लगातार बोलता रहता हूँ उस भाषा को अब हम रुपहले पर्दे के माध्यम से पूरी दुनिया में भी प्रचारित और प्रसारित कर पाएंगे, तो बहुत सुखद रहा। और एक चीज़ और क्या है कि मनोज वाजपेयी साहब के साथ पहले मैंने मनोज के साथ काम किया था, और अब आनंद इस बात का है कि अब पद्मश्री मनोज के साथ काम कर रहा हूँ। तो वो एक बहुत सुखद अनुभव रहा सोन चिड़िया में। हाय अभिषेक, फिल्म 1974 में सेट है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये उस तब का पीरियड है जब इमरजेंसी 75 में, उस दौरान क्या इमरजेंसी की भी कुछ झलक देखने को मिलेगी इस फिल्म में? उससे भी संबंधित कुछ चीज़ें हैं इसमें? है कि नहीं है वो फिल्म के लिए बचा के रखते हैं बिकॉज वो कहानी का हिस्सा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये फिल्म एक ऐसे इलाके में सेट है और ऐसे दौर में सेट है जहाँ पर बहुत ही अंदरूनी इलाका है, वहाँ पर रिसोर्सेज पहुँचाना बड़ा मुश्किल होता था, यू नो। तो वहाँ पर जो इमरजेंसी लगी थी देश में वो तो बड़े शहरों में लगी थी, वो सब लगी थी। ये यहाँ पर जो कहानी चल रही है यहाँ की एक अलग इंटरनल इमरजेंसी है जो इस फिल्म में दिखाई गई है। तो एक इमरजेंसी जो पूरे देश में व्यापक है और एक यहाँ अपनी एक कहानी चल रही है जो कि इमरजेंसी के जैसी ही है। एक सेकंड, रुको मैं आता हूं तुम्हारे पास, एक सेकंड। पहले जो डाकू के ऊपर फिल्म बनती थी उसमें एंटरटेनमेंट को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, और अभी जो फिल्में ऑडियंस जो लाइक करती है वो ज़्यादा न्यू स्टोरी पर ज़्यादा ध्यान देती है। इसके ऊपर आपने कितना इसको किया है? नहीं, सारी फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं और कोई कारण नहीं है फिल्म बनाने का। फिल्म एंटरटेनमेंट का ही माध्यम है और ये माध्यम में आप कहानी के जरिए एंटरटेन करते हैं लोगों का। आपका एंटरटेनमेंट से क्या एग्जैक्ट मतलब है मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये एंटरटेनिंग फिल्म ही है और इसमें एक बहुत ही रोचक कहानी है, रोचक किरदार है और रोचक सिचुएशंस हैं, और जो कि आपको आप जाएंगे फिल्म देखने तो आपको बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पहले एंटरटेनमेंट होता था अब नहीं होता, अगर अभी भी एंटरटेनमेंट ही है। अगर आप कह रहे हैं कि पहले डाकू की फिल्मों में घोड़े चलते थे और इसमें आपको घोड़े नहीं दिखे तो घोड़े और महबूबा तो हाँ वो नाच गाना भी होता था, तो हाँ, लेकिन इसमें एक कहानी के माध्यम से एंटरटेनमेंट हो रहा है आपका। Hi, Abhishek. I don't think you can see me, but my question is that, you know, you're known for a certain kind of cinema and revered for it. You've done quite a few films and they are critically widely acclaimed. Sometimes does that put a pressure on you to deliver because there's a certain kind of art that people are already expecting out of a director like you? Yeah, that kind of pressure must be there. I don't consciously think about it because filmmaking by itself is so tough that all your energies, all your faculties are, you know, trying to focus on getting it right. I think I have a very good set of friends and colleagues around me who are honest enough with me to be critical of my, you know, if I do something wrong. So if I can impress them, I basically get it right most of the time. So yeah, so it's what the world at large thinks of me, I think does play some sort of a role, but I don't think too much about it actually. Also, why is it called Sonchiriya and who is the Sonchiriya in the film? There are many things to the title. Sonchiriya is a very common name in the region the film is set in. Apart from that, Sonchiriya is the name of a bird. Sonchiriya जिसको कहते हैं. It's the name of a bird called, it's English में कहते हैं the Great Indian Bustard, which is an endangered species found in the Chambal region. Hence, this is a common name in Chambal. Sonchiriya, if you break the word also, it's Sonchiriya, gold bird, golden bird. Once upon a time, India was also called the golden bird. And in the film, these really rough-looking bandits and policemen, you know, they are stumbling in these ravines trying to
fight with each other, but what are they really looking for? And that what they're really looking for is Sonchariya. Yeah. ये पूरी की पूरी जो भाषा है वो बुंदेलखंडी है, जैसा आप देख रहे हैं। तो जी, तो हम फिल्म मेकर ये डिसाइड करते हैं कि वो ऑथेंटिक रहें, या फिर जैसे जब मैंने ब्योमकेश बख्शी किया था तो दिवाकर सर ने कहा था इसमें हिंदी जो है बंगाली होगी, उसमें मेरा डायलॉग भी था कि आप बंगाली नहीं समझते क्या, लेकिन इसमें सर ने कहा कि ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक लैंग्वेज में विल डू द फिल्म। तो बहुत पहले से ही हमें like we learn the language and the time it takes, so we took that much time, and by the time we started shooting for the film हम सबको ये language अच्छे से आ गई थी। So Bhumi, hi, this question is for you. Basically this, I mean, of course you're among the junior actors, so to say, in the cast, but how was it, like the pressure, was it more mental for you, was it more physical for you, because you were working with veteran actors, or was it also because, the character that you're playing is so physically, it's demanding, it's challenging, it's not your usual, it's full of action. So what was more playing up on your mind? I think it was a mix of both. I definitely feel emotionally, and where my craft was concerned, to match up to this amazing cast was a lot of pressure. I've been such a big fan of all of their works individually, and मुझे पता था कि यार ये थोड़ी हटके फिल्म है, इसमें मतलब जो आप ऑर्डिनरी फिल्म के लिए प्रिपरेशन करते हो उससे अलग जाना पड़ेगा. So I was very, very, very nervous. I was honestly very nervous. But where the physical aspect of it is concerned, as I even said earlier, I've really trained very hard for this film. Physically, my entire routine was pretty much around what my character did, right from her everyday daily chores. So, so it was a bit of both. All right, we'll wrap it up, and we'll take a little photo session right here. So, ladies and gentlemen, if you could just move a little ahead, and we'll have the chairs moved from the back, and we'll have all the mics taken. Can you just take the mics, please? Yeah. Okay. One sec. Just let all the chairs go. सारे जाने दो यार. First, we'll look straight. पहले सीधा देखेंगे. पहले center, everybody, please. हाँ मैं बोल रहा हूँ पहले center रुको. Center. Okay, now right side, please. So stage right. Stage right. हो गया? अभी stage left. और अभी क्लास सेंटर में. अच्छा कॉम्बिनेशन करने हैं आपको? ओके ठीक है. One second, sir. Yeah. The star cast with combination, please. Star cast. Thank you, Ronnie, sir. Thank you, Abhishek, sir. अभी straight, no. अभी सब लोग straight. सब लोग straight, center. And now stage right. Sub stage right. और अब स्टेज लेफ्ट. डन. नाउ विल डू सोलोज. मनोज सर. अच्छा पहले भूमि. लेडीज फर्स्ट है ना. जेंटलमैन डू स्टे हियर. अच्छा सुशांत एंड भूमि टुगेदर. ठीक है पहले सुशांत भूमि टुगेदर. स्टार्ट फ्रॉम सेंटर. अच्छा पहले स्टेज लेफ्ट. ओके डन. हम सोलो करते हैं.
Yes, badi cast hai baba. Okay. So, should both on the stage separate? Chalo, one second. अरे रुक जाना, पहले लेफ्ट हो रहा है, रुक जाओ. अब now stage right and finish off with center. Thank you. Bhumi. Thanks, Sushant. Thank you. Now, Bhumi. We're done. Thanks, buddy. Left to right. Okay, thank you. Manoj sir, solos please. आशुतोष सर सोलोज लेने हैं. हाँ अच्छा तीनों का. Abhishek sir, where are you? Ha, he is here. Ronnie sir is here. Solos. ये आज के कॉम्बिनेशंस खत्म नहीं होंगे, इतने एक्टर हैं तो लेट्स. So he is on the other side. Yeah. पहले मनोज सर सोलो. लेफ्ट टू राइट. All right, thank you. Ashutosh sir. Thank you. Yeah, Ranveer, please. All right, thank you. Ronnie sir and Abhishek sir, please on stage. Hi, Abhishek sir. All right, thank you, gentlemen. Ronnie sir, solo. My friends, there is also lunch being served for all the gentlemen and ladies that are here. Thank you so much, Abhishek sir. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us. There is lunch served.